क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट पे जाने से पहले थोड़ी सी एक दो स्लाइड्स मैंने बनाई हैं जो हमारा करंट बर्डन है हेल्थ सिस्टम का. सो व्हाट वी हैव in Pakistan and how we are dealing with this. So if you see, we have a mixed health system where there is a public sector, very large public sector, government sector health system, and equally large private sector. The private sector is mostly for profit, and the public sector primary care is mostly underutilized. So if you see, the effect of climate change will definitely alter. लग गया? चलें. Thank you. हाँ सही है. So if you see these जी हाँ इसको ऊपर कर दें. Thank you. If you see these numbers, they will tell you that what public health burden already we are having. We have not added anything which is coming from climate change. So smoking, very less intake of fruit and vegetable, whether we are living in urban setting or whether we are living in rural setting. Very high prevalence of inactivity, physical inactivity. Whenever we do population-based surveys, we come up with a percentage of around 10% people who are doing regular physical activity on a daily basis. 90% Pakistanis, they don't do any physical activity on a daily basis. 30 minutes per day, 5 days a week is minimal. If you see the overweight, again because of this poor inactivity, because of poor eating habits, we have a very high prevalence of overweight. Very high prevalence of hypercholesterolemia, which results in heart disease and hypertension, and of course diabetes is #1 in the world nowadays in Pakistan. Pakistan has a range of around 13 to 17% Pakistani population in various provinces who are diabetic. Pakistan stands at #1 in diabetes in the world. Hepatitis C and B surveys are showing very high prevalence of hepatitis B and C, and most of it is iatrogenic, hospital-based infections. Diarrhea and anemia. We are #5 at the TB. We are #3 with the highest maternal deaths in the world, and we are #1 in neonatal mortality in the world. So ये हमारी statistics हैं क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट के बगैर, और ये पिछले 40 ईयर से कंटिन्यूसली ये ट्रेंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है. सो वी कैन ईजीली से दैट ऑलरेडी पब्लिक हेल्थ pandemic, public health, different kinds of epidemics, they have a very high risk for Pakistani population because we are already burdened by a very high disease risk. So there are diseases and the risk factor in Pakistan. Polio, you know, it's still been going on. If you see, because nutrition is linked with climate change more, we have one of the very highest number. I think Afghanistan is the only country worse than Pakistan in stunting. So 42% Pakistani children under 5 are stunted. Underweight, you can see a very high prevalence, and wasting, very high prevalence. This is of children. Under 5, anemia in children is 48%, zinc is 19%. One of the reasons is given here. We start breastfeeding at a very late age. We don't continue exclusive breastfeeding, and we don't continue 2 years minimal breastfeeding. So and then the complementary feeding is also very poor. Only 36% children, they get appropriate feeding. Dietary diversity is the worst in the whole region. Only 14% children, they got a very diversified diet. Minimal acceptable diet, only 3.6% children get that. Deworming, just an example of a health system. One very simple intervention which can reduce a lot of burden of anemia, that coverage is also only 13%. Disability is on the rise because of malnutrition and other problems, micronutrient deficiencies and other problems. There is a high functional disability. Autism is on the rise, and disabilities are also on the rise. In women, if you see, anemia in women is ranging around 44% to 49% in the pregnant women in Pakistan. Vitamin D deficiency, around 80% of Pakistani women of reproductive age, they are having vitamin D deficiency. Again and again the surveys are proving it. Vitamin A deficiency in the women is around 27%. 18% women are underweight. On the other hand, 24% women are overweight. So there is a very big problem of normality and normal sort of system and normal BMI
in the country when it comes to children and when it comes to this women as well. What do we have for these high burden of risk factor, high burden of nutrition, high burden of health disorders? What do we have? We actually spend half of the average Pakistani, they spend half of their income only on food. So if the climate change affects just a very, very little amount of their livelihood, it is going to affect not only their food but also their living. India कि जो लोग हैं वो तकरीबन उनकी इनकम का जो पर इंडियन है एवरेज 35% फूड पे जाता है। पाकिस्तान का 50% जो हम कमाते हैं वो फूड पे जाता है। ज़रा सा शॉक लगे जॉब का, फूड प्राइसेस, इन्फ्लेशन, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, व्हाटएवर, इकोनॉमिक रिसेशन, दिस विल एक्सेसरबेट द नंबर ऑफ पुअर इन द कंट्री। पाकिस्तान में अगर 100 लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जाते हैं, आउट ऑफ दोज 100, 56 पीपल गो बिलो पॉवर्टी लाइन बिकॉज ऑफ अ डिजीज़। इसको हेल्थ शॉक कहते हैं, जिसकी बेसिस पे ये सारे सोशल हेल्थ प्रोटेक्शन के प्रोग्राम शुरू किए गए थे। सो पाकिस्तान में अगर 100 लोग एक साल में गुर्बत की लकीर से नीचे गए, उनमें से 56 की वजह बीमारी थी, खुद की बीमारी या उनकी फैमिली में बीमारी, कैंसर, हार्ट डिजीज़ और एनी अदर थिंग। सो डिजीज़ और सिकनेस इज़ द नंबर 1 पुअर प्रोड्यूसिंग फिनोमेना इन पाकिस्तान, जिसकी वजह से हमें बहुत शदीद ज़रूरत है सोशल हेल्थ प्रोटेक्शन की। नॉट अ यूनिवर्सल सॉर्ट ऑफ थिंग विच कैन नॉट बी अचीव्ड बाय इवन द अमेरिकन्स। वी शुड फोकस ऑन दिस पुअर को जो लोअर मिडिल इनकम है या जो पॉवर्टी लाइन के उसके बॉर्डर लाइन पे हैं, उनके लिए हेल्थ सर्विसेज को सोशली हेल्थ प्रोटेक्ट करना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरवेंशन विच वन कैन डू। यू नो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में 76 कंट्रीज़ आर बेटर देन अस, वी आर एट द नंबर 77th, and the malnutrition in the poorest quintile is twice as compared to richest quintile. ये सारी बातें जब आप देख लें तो फिर आप आते हैं कि हमारा इसमें डेफिनेटली हाउ द क्लाइमेट चेंज इफेक्ट कैन इम्पैक्ट दिस थिंग। हमारे पास है क्या जो हम हेल्थ सिस्टम में डाल रहे हैं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पाकिस्तान 189 मुल्कों में हमारा रैंक 150th है। इसका मतलब है 149 कंट्रीज़ हैव बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दैन पाकिस्तान। हेल्थ जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपको पता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, चाइल्ड मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी और जो उनकी बाकी जो इकोनॉमिक के एक इंडिकेटर है, बाकी इंडिकेटर हेल्थ के हैं ज़्यादा। जनरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज़ ओनली 9.7% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। 100 रुपये गवर्नमेंट खर्च करती है तो सिर्फ 9 रुपये हेल्थ पे होते हैं। 34% हेल्थ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का है, 64% प्राइवेट है। 89.9% आउट ऑफ पॉकेट स्पेंडिंग इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। So in Pakistan, the health sector is predominantly a private sector market. If you have money, you can buy anything. If you don't have money, you have to wait in queues and lines and you have to wander here and there. So ये जो out of pocket spending है, ये Federal Bureau of Statistics की continuously increase show कर रही है. It is showing that every year the out of pocket cost of patients is increasing. Even in the government hospital, आपको बहुत सारी चीज़ें बाहर से ख़रीदनी पड़ती हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारे सरकारी अस्पतालों में फ्री सर्विसेज मिलती हैं, वो सिर्फ एक सर्वे कर लें कि पाकिस्तान के हर बड़े सरकारी अस्पताल के सामने इतनी बड़ी फार्मेसी की मार्केट क्यों होती है। What is that if something is given free inside, what is that big pharmacy market outside doing? Not only the pharmacy market is scattered and placed in front of a government hospital in all over Pakistan, there is a network of labs which is just in front of the government hospital. Then there is a clinics and private hospitals are now being established just opposite a government hospital. आप किसी भी THQ, तालुका, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पाकिस्तान के चले जाएं, उस हॉस्पिटल के सामने आपको सबसे बड़ी कंसंट्रेशन मिलेगी फार्मेसी की, सबसे बड़ी कंसंट्रेशन मिलेगी लैब्स की और सबसे बड़ी कंसंट्रेशन मिलेगी क्लिनिक्स की। ये इस्लामाबाद से शुरू करें और पूरे पाकिस्तान में आप सर्वे करें। हमारे स्टूडेंट्स ने पब्लिक हेल्थ के सर्वेस किए हैं और सबसे बड़ी कंसंट्रेशन है ही गवर्नमेंट के सामने। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इज़ मेजॉरिटी ऑफ द सर्विसेज इनसाइड दे आर नॉट अवेलेबल, सो दे हैव टू गो आउट फॉर अ टेस्ट, दे हैव टू गो आउट फॉर मेडिकल परचेज एंड दे हैव टू गो आउट इवन फॉर कंसल्टेशन। ये एक हमारा आउट ऑफ पॉकेट का ज़रा जहन में रखें, इसके लिए हमें कुछ सोचना है। डोनर का शेयर, अब बड़ा नाम सुनते हैं, वो कहते हैं ना बड़ा शोर सुनते थे सीने में दिल का। वो जो दिल है डोनर का, इसका कंट्रीब्यूशन टोटल पाकिस्तान में 1.7% है। उसको आप बार बार वेरीफाई करें। It has never been more than 2%. So if 100 rupees are spent in Pakistan, maximum 2 rupees in the years of 2005-06 were spent by donors.
तो ये एक बड़ी खाम ख्याली है कि पाकिस्तान का हेल्थ का निज़ाम डोनर चला रहे हैं। डोनर की कंट्रीब्यूशन इज़ 1.7%, 98.3% कंट्रीब्यूशन मेरी और आपकी जेब से जाती है 89% में देखें। सो पाकिस्तान के अंदर डोनर्स का भी वो लेवल नहीं है, वो चीज़ नहीं है, और ये स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट की है, डोनर्स की अपनी है। और ये जो 1.7% शेयर है ये भी वो खर्च करते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देने की बजाय प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना आपके और मेरे साथ, और फिर वो उन प्रोजेक्ट्स पे खर्च करते हैं। और वो कैसे खर्च करते हैं वो एक और कहानी है। पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर पाकिस्तान का बहुत आप उसको फैला लें ना, बहुत एक्सपेंड कर लें, जितना मर्जी घुमा फिरा के ले आएँ कि पर कैपिटा कितना है। इट इज़ ओनली $45 US पर पर्सन पर ईयर। इट हैज़ टू बी नॉट लेस दैन $90 पर पर्सन। इट्स लेस दैन हाफ of what actually we need. Minimum जो है ना वो 90 होना चाहिए. Look at this, $127 per person per year in Sri Lanka, $75 per person per year of 1.6 billion people in India, and $50 per person per year in Afghanistan. So we have one of the worst health system financing in the world. पाकिस्तान स्पेंड्स लोएस्ट, अफ्रीकन कंट्रीज़ होंगे थोड़े से, लिसोथो, इस तरह के जो चाड और इस तरह की जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनकी शायद 40 है या 42 है, पाकिस्तान का 45 है। ये पर कैपिटा था। अब आप आ जाएं हेल्थ एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम। हम कहते हैं ना इनकम पे डिपेंड करता है। हेल्थ एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ GDP और GNP पाकिस्तान ने लास्ट ईयर 1% पे सर्वाइव किया। ये 0.7% है 1947 से लेके 2006 तक। 1947 to 2006, the health expenditure of Pakistan as a percentage of GDP had always been 0.7%. ये 1% क्रॉस हुआ है कुछ साल पहले। Look at Afghanistan, 9.7%, India 3.6% of their GDP, which is one of the highest in the world, 3.8% Sri Lanka, even Bangladesh, जो टका जिसकी करेंसी थी जब वो यहाँ थे और अभी उनकी करेंसी हमसे बहुत ऊपर है, 2.4% ऑफ बांग्लादेश GDP पर। ये होना कितना चाहिए आप सबको पता है, इट हैज़ टू बी मिनिमल 5%। US की 13% है, यूरोपियन कंट्रीज़ की 14-15% है, जो स्कैंडिनेवियंस हैं वो हाईएस्ट स्पेंड करते हैं। 10% भी ना हो, 5% इज़ मिनिमम, एंड वी आर स्पेंडिंग 1%। सो इस बैकड्रॉप में अगर क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट आप डाल लें तो वो ये हैं। पाकिस्तान क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में नंबर 5 पे है, और ये भी इस वजह से कि हमारे यहाँ पे क्लाइमेट रिस्क का डाटा इतना रेगुलरली जनरेट नहीं करते हम। अगर हम क्लाइमेट रिस्क एस्टिमेशन यहाँ पे करें तो हम ये नंबर 1 को भी पीछे छोड़ देंगे। ये तो एस्टिमेट्स हैं जो मुख्तलिफ आसपास के कंट्रीज़ को लेके हमने तो यहाँ पे क्लाइमेट में रिसर्च ही नहीं की। आप देखें आपके क्लाइमेट चेंज का जो नेशनल एक्शन प्लान बना था उसके अंदर हेल्थ का चैप्टर ही नहीं है। इन पाकिस्तान द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट का जो पूरा प्लान है, नेशनल एनवायरमेंटल प्लान, नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज, देयर इज़ नो चैप्टर, देयर इज़ नो टॉक ऑन हेल्थ ऑन दैट। सो अगर आप क्लाइमेट रिस्क की बात करें तो क्लाइमेट रिस्क में हम शायद नंबर 1 होंगे। और ये एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये जो क्लाइमेट रिस्क है ये रिस्क पाकिस्तान ने नहीं पैदा किया। जो क्लाइमेट रिस्क इस वक्त साउथ एशिया फेस कर रहा है ये सारे का सारा वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, रेनेसांस से लेके 1700 की सदी से लेके 400 साल की हिस्ट्री है, उसमें जो उन्होंने पोल्यूशन क्रिएट की और उन्होंने जिस तरीके से वो जो कार्बन फ्यूल और कार्बन फुटप्रिंट उन्होंने एक्सपैंड किया, हम उसकी पाकिस्तान कंट्रीब्यूट क्लाइमेट चेंज के अंदर दुनिया के अंदर 1% भी नहीं करता, लेकिन नंबर 5 पे हैं हम क्लाइमेट रिस्क के। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये है वो डिटेल कि जिसकी बेसिस पे आप स्टडी कर सकते हैं फ्यूचर में कि हमारे इम्पैक्ट कैसे होंगे। सो क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट हैं वो ये मिनिमल ये हैं, इसके अलावा बहुत सारे हैं, और हर किसी के ऊपर एक चैप्टर, एक स्लाइड मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पे आने का मकसद ये नहीं था कि मैं यहाँ खड़े होकर लेक्चर दूँ। मैं अर्शी को रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरी प्रेजेंटेशन है ये आपको दे दे सबको। मेरी प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ भी कॉपीराइट नहीं है, ये सारी कॉपी लेफ़्ट है। So there is no copyright in this presentation. You all can get this presentation and show it to your students, your colleagues and your fellows. ये डाटा सारा इसके सब के जो लेक्चर नोट्स के नीचे हैंड होता है ना, नोट्स होते हैं इसके प्रेजेंटर नोट्स, उसमें इसके सब के रेफरेंस अवेलेबल हैं। जो भी रेफरेंस आपको चाहिए हो वो रेफरेंस मेरे पास अवेलेबल है। सो हमें एक काम जो है हम कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को मिनिमाइज़ करने के लिए हम ज़्यादा नहीं कर सकते पाकिस्तानी, क्योंकि हम पहले ही हमारी इंडस्ट्री बंद है। आपने कार्बन फुटप्रिंट और कार्बन से करना है ना, एमिशन से करना है। हमारी तो इंडस्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं, हमारी एमिशन कहाँ पे है? एमिशन तो वहाँ पे हो रही है जहाँ सुबह से लेकर शाम तक इंडस्ट्री चल रही है और वो भी कार्बन फ्यूल यूज़ कर रही है। गाड़ियाँ होंगी हमारी, उनके ऊपर आप थोड़ा सा काम कर लें।
यहाँ पे जो हम जो कर सकते हैं ना पाकिस्तानी, वो सिर्फ़ और सिर्फ शोर कर सकते हैं इस काम के ऊपर, और मेरा ख्याल है हम वो भी नहीं कर रहे हैं, हमें शोर मचाना चाहिए उन लोगों के ऊपर जिन्होंने कार्बन का, क्लाइमेट चेंज का ये डिज़ास्टर क्रिएट किया और उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर आ रहा है। तो ये जो सारी स्टडीज़ हैं ये अवेलेबल हैं। मैं आपको एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि वी हैव एस्टैब्लिश्ड डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। I am going to sign an MOU with लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एज वेल। हमने इसके ऊपर डिस्कशंस कर ली हैं, अर्शी और बाकी लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो वी विल बी वर्किंग टुगेदर फॉर अ लॉट ऑफ दीज स्टडीज़ एंड रिसर्चेज इन फ्यूचर about all of these areas. So there is a heat wave, there is a water scarcity. Vector borne का हमारा अपना प्रोग्राम है मेडिकल एंटोमोलॉजी का, डिजीज़ वेक्टर का, उसके ऊपर हम लम्स के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन, मेंटल हेल्थ का वी हैव अ पब्लिक मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट विद 3 PhDs फ्रॉम मैनचेस्टर, लिवरपूल एंड एडनबरा। वो इसके ऊपर काम करेंगे आपके साथ। एंड ऑफ कोर्स ये जो माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट की वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी इसके ऊपर हम कर सकते हैं। सो वी हैव, मेरे पास जस्ट दिखाने के लिए आपके इस हर टॉपिक के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे अभी ये छोड़ के जा रहा हूँ, ये जो जितनी भी आपकी यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है, हर किसी के ऊपर एक चैप्टर और एक डिटेल फैक्ट शीट मौजूद है पाकिस्तान की। सो आई विल बी हैप्पी टू शेयर विद द ऑर्गेनाइजर्स एंड विद ऑल ऑफ यू, एंड इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच।